सॉल्ट। सॉल्ट। तो पहली बात हम लोग ये देखते हैं कि सॉल्ट ऑलवेज कंप्राइजेज ऑफ a cationic part and an anionic part. And please, I have told you this in my about 10 minutes ago that all salts are. Strong Strong electrolyte. electrolytes. आप कोई एक सॉल्ट का नाम बताओ मुझे, कोई भी एक सॉल्ट। Sodium NaCl। chloride. NaCl, ठीक है। और कोई है? एनी अदर सॉल्ट? KCl. KCl। और MgCl। Mg होगा तो राजा Cl2 होगा, राइट? यस सर। ओके। और किसी को बोलना है या बस हो गया? किसी को बोलना है? कोई एग्जांपल बोलो, चार कर लेते हैं, खत्म करते हैं। Calcium chloride. ओके, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये सब एक टाइप का हो गया एक्चुअली। लेट मी टेक सोडियम एसिटेट। I'll tell you why I am taking this. Okay, now let's see this. NaCl में प्लस पार्ट कौन सा है? Na plus. So this is plus and this is minus. KCl में? K plus. MgCl2 में? Mg Mg plus. प्लस। Mg2 प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। सोडियम एसिटेट में? Na plus and acetate minus. ये प्लस है, ये माइनस है। तो हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ एनी सॉल्ट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो आपको क्या करना है, जो माइनस पार्ट है वहां पे आप H ऐड कर देंगे, और जहां पे प्लस पार्ट है वहां पे आप OH ऐड कर देंगे। तो NaCl कौन से सॉल्ट से बना, कौन से एसिड और बेस से बना? NaOH and HCl. NaOH and HCl. What about KCl? KOH and HCl. What about magnesium chloride? MgOH whole 2 and HCl. Very good. MgOH twice plus HCl. 2 HCl. HCl. हाँ ठीक है। और सोडियम एसिटेट? Acetic acid and NaOH. Right? So the first thing that we realize is that every salt is can be thought of, it can be said that this salt was made as a result of reaction between an acid and a base. And likewise, जब आप when you have acid plus base, you get salt plus water. यही है ना? अब NaCl कैसे बना, अभी आप बताओ। हाउ डू आई गेट NaCl? हाउ डू आई गेट NaCl? NaOH plus HCl. ओके, पहले मैं एसिड बोल रहा हूं तो let's keep that in mind. So it will be HCl HCl plus NaOH. plus NaOH gives. Okay. So, and which kind of acid is this? HCl. Strong acid. And NaOH is? Strong base. So I can is salt of strong acid and strong base. Can I say that? Yes, sir. So I want you to think in the next 1 minute, salt made up of strong acid, strong base, strong acid, weak acid, strong base, and weak acid, weak base. I am giving you exactly 30 seconds and I want you to write down for at least one example of each of them. Try it.
All right. Time up. Who can tell me the examples now? Hmm? Tell me the examples. Anybody? I've shown you some examples. Hello. So the first is strong acid and strong base. You have Hmm. given the example. Correct. And then the strong acid and weak base. Strong acid plus Weak weak base. base. हाँ बोले. HCl plus NH4OH. Very good. HCl plus NH4OH. NH4OH. क्या बनेगा? NH4Cl plus water. So NH4Cl is a salt made up of. Strong acid and weak base. So it is strong acid and weak base. Okay. Next. Weak acid and strong base. Mm-hmm. Acetic acid and NaOH. So this is the example, right? This is your weak acid and this is your. Strong base. Okay. And the last one. Weak acid and weak base. Mm-hmm. Acetic acid Mm-hmm. and NH4OH. तो आपका सॉल्ट क्या बनेगा राजा? CH3COO NH4 and water. Correct. So the example of weak acid and weak base is Ammonium ammonium, acetate. ammonium acetate. All right. Yes, sir. So when I say hydrolysis of salt, what does it mean? It means that देखो मेरा salt बना किससे? Acid and base. So acid plus base. Now depending on आपका acid कौन सा है, base कौन सा है, you can have several things. Gives what? Salt and water. Salt plus water. Now if I take the reversible reaction, what will that reaction be called? Salt hydrolysis. Hydrolysis of salt. And what is the forward reaction called? Neutralization. Neutralization. So when we are discussing hydrolysis of salt in a very easy way, what I am trying to find out is my neutralization reaction reversible? Am I talking about the same thing or am I talking about different things? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होता है कि नहीं होता है, मैं इसको एक दूसरे भाषा में ये कह सकता हूं कि मेरा जो एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है कि नहीं है. आर दे द सेम थिंग और आर दे डिफरेंट थिंग्स? सेम सर. सेम है ना. सो कीप दिस इन माइंड. सो नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of what? Strong acid and strong base, right? Let's write down the example. बताओ क्या क्या है? What will my reaction be? HCl HCl plus NaOH. NaOH. प्लीज ध्यान रखो इनके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस है. करेक्ट. गिव्स NaCl plus water. NaCl and water. Now let's discuss few things. The same discussion is going to be true for all other cases. अभी आप देखिए, पहले आपके पास HCl था, स्ट्रॉन्ग है वीक है? Strong. इसका मतलब क्या? It dissociates completely. इसका मतलब है कि आपके पास HCl है ही नहीं, आपके पास क्या है?
H plus and Cl minus. Keep this in mind. You don't have HCl. What you have is H plus and Cl minus. Now, you have sodium hydroxide. What about this? Strong, weak? Strong. Strong. What does it mean? Na plus and OH minus. Do you have NaOH? No. No. Okay. इन दोनों के रिएक्शन से क्या हो गया? You get these two combine to form, NaCl. and these two combine to form Water. water. Now NaCl, strong, weak? Strong. Why? Because it is a salt of strong acid and strong base. No. All the salts are strong Correct. electrolytes. Because it's a salt. It's as simple as that. Salt किससे बना है उससे डिपेंड नहीं करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो वो Strong Strong electrolyte. ओके. इसका मतलब है आपके पास NaCl है, No. आपके पास क्या है? Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus. Now water is a weak electrolyte. What is the meaning of water is a weak electrolyte? It does not Dissociate into H plus and OH minus. Which means I have lots and lots of H2O and Less of H plus and OH minus. very little amount of H plus and Cl minus. Right? OH minus ना. Sorry, OH minus, sorry. यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. So if I take a solution which has NaCl and water, अभी आप लोग बताओ इस solution में क्या क्या है? Na plus हाँ Cl minus और and water. और H plus OH minus. okay. You have less amount of this, but they are there. Keep this in mind. लेकिन ये H plus और OH minus कहां से आया? Acid and base. नहीं, Water से. वाटर से. So अगर एक वाटर टूटता है कितना H plus और कितना OH minus बनाता है? 1 H plus One. and OH minus. अगर आपके 100 H2O टूटते हैं तो H plus और OH minus कितने कितने होते हैं? 100 H plus, 100 OH minus. So what it means is I can also say that the concentration of H plus and concentration of OH minus is same. Can I say that? Yes. Okay. Now this is before they start reacting. Now Na suppose reacts with OH minus. तो क्या फॉर्म हुआ? Suppose Na plus OH minus के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ? NaOH. NaOH. लेकिन NaOH फॉर्म होता है क्या? नहीं. Because as soon as NaOH is formed, because NaOH is a strong acid, it exists as Na plus and OH minus. समझ में आई ये बात? Yes sir. देखिए आपका हो सकता है Na प्लस OH माइनस से रिएक्ट करता हो, लेकिन रिएक्ट करने के बाद बनता क्या है? The same thing. Base. हाँ, बनता है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस का यानी NaOH बनता ही नहीं है. क्या बना आपका? Na प्लस और OH minus. तो मैं ये बोल सकता हूं कि Na प्लस जो है OH माइनस से रिएक्ट ही नहीं करता है. Yes. मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है रिएक्ट करता हो, ध्यान रखो, लेकिन हमको कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है ना. रिएक्ट हो रहा है, NaOH बन रहा है, लेकिन वो दोबारा टूट के तुम्हारे Na प्लस और OH माइनस बन रहा है, यानी तुमने
तुमने जहां से शुरुआत किए थे वहीं पे तुम पहुंच गए। तो क्या आप बोल सकते हैं कि Na+ डज नॉट रिएक्ट विथ OH माइनस? Yes. ओके, व्हाट अबाउट Cl-? Cl- किसके साथ रिएक्ट करेगा? H plus H plus. क्या बनाएगा? strong acid. HCl. और वो क्या करेगा? डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपका HCl बनता है। नो। No. तो कैन आई ऑल्सो से दैट Cl- डज नॉट रिएक्ट विद H+? यस। Yes. So there are two conclusions here, that the salt does not react with water, does not react with H+, does not react with OH-. मानते हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. So can you write down that the salt of strong acid and strong base do not hydrolyze? Can you see that? Yes, sir. And what will be the pH of the solution? Sir, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो तो पानी का पीएच 7 होता है। आपके पास H+ कितना है? कितना है पता नहीं, लेकिन OH- के बराबर है, उतना तो आप मानते हो। yes, sir. इसका मतलब है इस अगर आपने pH निकाला और इसका pOH निकाला, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH? They will be equal. They will be equal, and I know that pH plus pOH is how much? 14। 14. तो मेरा pH कितने के बराबर हो गया? 7। 7. So if I take, now let's write, आप लोग ये दो सेंटेंस लिख लीजिए. The salt of strong acid and strong base do not hydrolyze. समझ में आया? Yes, sir. And the pH of the solution will be 7। 7. Again, let me repeat I'm not going to repeat this. This is there on a recording. I am going to put this. आप लोग ये देख लेना, समझ में आ जाएगा. आगे चले? Yes, sir. ओके. दूसरा जो है, लेट्स टॉक ऑफ अ सॉल्ट ऑफ, दूसरा कौन सा केस ले आप लोग बताओ? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. एग्जाम्पल बताओ बेटा. HCl, HCl plus NH4OH, NH4OH gives NH4Cl L NH4Cl plus 1। plus water. water. Now I have a beaker in which I have this salt and water, NH4Cl and water. Now let's explain again. This beaker contains क्या क्या? NH4 plus NH4 plus है बहुत सारा, करेक्ट. देन Cl minus Cl- है, वो भी बहुत सारा है. देन I'll have water and I'll have H plus and and OH plus OH minus. इनके कॉन्सेंट्रेशन less। सेम होंगे, लेस होंगे लेकिन सेम होंगे इनिशियली, राइट? यही हमने पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में भी यही कहा था ना. Yes, Yes. sir। वाटर के टूटने से आपके H plus OH minus बनता है. तो कितने भी, डजेंट मैटर कितने भी वाटर टूटे, the same number of H plus and OH minus will be formed. So before they start reacting, the concentration of H plus and OH minus will be same। अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या करेगा. Now let me use another color. अमोनियम ये किसके साथ रिएक्ट करता है? OH के साथ OH माइनस के साथ. क्या बनाता है? NH4OH।
और एक बार एमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, ये टूटता है कि नहीं टूटता है? नहीं टूटता है। इसका मतलब है अमोनियम का OH माइनस के साथ रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। अभी देखिए दूसरा है आपके पास Cl माइनस। Cl माइनस किसके साथ रिएक्ट करता है? H H plus क्या बनाता है? HCl HCl. उसके बाद क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो Cl माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं करता है? No. नहीं करता है करता है। पर हाँ नहीं करता है, पर वाला कोई बात नहीं है, नहीं। तो अभी आप बताओ इसमें आपके पास क्या क्या होगा इन दोनों के मिक्सचर के बाद? NH4OH। NH4OH. NH4OH होगा, और क्या होगा? प्लस हाँ, H प्लस Cl माइनस H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, और OH माइनस का रहेंगे, लेकिन अब OH माइनस पहले से कम हो जाएंगे कि ज्यादा हो जाएंगे, या पहले डिक्रीज से कर ज्यादा? कम. OH minus will be less Less. than before, right? And you'll have of course water. यहां तक समझ में आया? यस सर। तो इसमें पहली बात, हाइड्रोलिसिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। हाइड्रोलिसिस हुआ ना। ये देखो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है, ये तुम्हारा वापस से हाइड्रोलिसिस जो है, प्लीज रिमेंबर, दोनों आयंस के नहीं हो रहे। कौन सा, केटाइन का हो रहा है कि एनाइन का हो रहा है? केटायन का। केटाइन का, एनाइन का अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। एंड व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, नाउ टेल मी। सर मोर देन 7। नहीं ना राजा। Less than 7 क्यों राजा? because H plus is more than OH. देखिए अभी, हाँ अभी आपका देखो, पीएच OH और H प्लस जब सेम था तो पीएच 7 था। अभी आपके पास H प्लस ज्यादा हो गया, H प्लस एक्चुअली ज्यादा नहीं हुआ है, OH माइनस कम हो गए। करेक्ट। एज इट्स नॉट एज इफ तुम्हारी H प्लस के नंबर बढ़ गए। दरअसल हुआ क्या है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज्ड। इसका मतलब है H प्लस और OH माइनस में कौन ज्यादा? H प्लस। H plus. यानी pH of the solution will be, Less than 7. Less than 7. is this clear? यस सर। Yes, So sir. the second is the salt of strong acid and weak base, they hydrolyze or they don't hydrolyze? हाइड्रोलाइज। They Hydrolyzed. hydrolyze, and the pH of the resultant solution is, लेस देन Less 7। than 7. ये आया समझ में? यस सर। ओके वेरी गुड। अब तीसरा तीसरा के एग्जांपल आप लोग बताओ मुझे। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जांपल बताओ। एसिटिक एसिड एंड KOH। एसिटिक एसिड एंड KOH। ठीक है, NaOH बहुत हो गया था, KOH अच्छा है, क्या बना? पोटेशियम एसिटेट एंड वाटर। पोटेशियम एसिटेट and water. Now my question is, does this molecule, does this salt hydrolyze or not? Will it remain undissociated potassium acetate or it will be dissociated if you take potassium acetate in water? क्या होगा? Anion that will hydrolyze. Will you have undissociated potassium acetate? सर डिसोसिएटेड। क्यों? सर सॉल्ट सॉल्ट है तो सॉल्ट होने से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट स्ट्रॉन्ग विल इलेक्ट्रोलाइट है, so this will exist in what form? CH3 CO माइनस CO minus and K प्लस। K plus. अब water being a weak electrolyte,
most of them will exist as water, but some of them will exist in form of H plus OH minus. H plus and OH minus. But their concentration will be Same. That same. Now let's start doing the calculation. अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? H plus के साथ क्या बनाएगा? acetic acid. Acetic acid. और वो डिसोशिएट नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक एसिड है. ओके, इसका और इसका रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? KOH. KOH. KOH बनेगा. एक सर मिनट रुको, CH3 एक मिनट बेटा. हाँ, KOH बनेगा. आई विल कम बैक टू यू. KOH बनेगा, फिर क्या होगा? सर, डिसोशिएट. Dissociate. सो दैट इज एज गुड एज इनके बीच में रिएक्शन. नहीं होगा. नहीं नहीं. होगा. हाँ ओके. अभी कोई तो कुछ पूछ रहा था, बताओ क्या पूछ रहे थे बेटा? सर CH3CO माइनस और सर पोटेशियम आयन दोनों वापस से कंबाइन होके सर कर सकते रिएक्शन. हाँ, लेकिन ये कंबाइन होगा तो क्या होगा? क्या बनेगा? CH3CO के और फिर क्या होगा? Salt. फिर क्या होगा? डिसोसिएट होगा शायद. हाँ, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट. हाँ, तो इन दोनों के रिएक्शन के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये दोनों से रिएक्शन से क्या बनता है, ये बनता है, लेकिन ये दोबारा टूट के यही बना देते हैं. यस सर. तो तुम्हारा ये जो सॉल्ट है हाइड्रोलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. Yes. एनाइन हाइड्रोलाइज हो रहा है कि कैटाइन हाइड्रोलाइज हो रहा है? Anion. अनायन. लेकिन हमको एनाइन कैटाइन से लेना देना नहीं है, हाइड्रोलाइज हो रहा है. उस हाइड्रोलिसिस की वजह से जो आपका H प्लस और OH माइनस का जब पहले कॉन्सेंट्रेशन सेम था, किसके कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पड़ेगा? Concentration of H plus will decrease. Will decrease and concentration of OH minus will Remain same. remain same. तो उसकी वजह से किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? OH minus. OH minus. तो आपका pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? More than More 7. than 7. More than 7. समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं? इज दिस क्लियर? यस सर. ओके, लास्ट वाला डिस्कस करते हैं. उसके बाद सॉल्ट ऑफ क्या होगा? Weak acid and weak base. वीक एसिड प्लस वीक बेस. हाँ, एसिटिक एसिड प्लस क्या था एग्जांपल? Ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिविंग Ammonium acetate and water. okay. Now I will give you some time and think that ये मेरे पास दो ही सवाल है. सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है कि नहीं होता है, पहली बात. दूसरी बात, सॉल्यूशन का पीएच कितना है. तो आप लोग सोचिए, और नो प्रॉब्लम अगर आप गलत होते हैं. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. आई एम हैप्पी एज लॉन्ग एज यू ट्राई और यू थिंक. कौन ट्राई करेगा? Hydrolysis will take place. पहली बात है हाइड्रोलिसिस होगा. दूसरा, pH will be मोर देन 7. Equal to 7. equal to 7. ओके, ये कोई लेस देन 7 वाला नहीं है. ठीक है, पहले मोर वाला कौन था? अरे शर्माओ ने. यस सर.
तुमको क्यों लगा मोर था? सर वो रिएक्शन मैंने इनकम्प्लीट किया था। यानी एक्सप्लेन करो ना तुम्हारा जो भी लॉजिक है. सी आई डोंट माइंड अ रॉन्ग आंसर as long as your answer is logical. I have absolutely no problem with your answer being factually wrong. अगर तुम्हारा सोच का जो तुम्हारा रुख सही है तो doesn't matter. So I want to know how you came to this conclusion. नो नो सर, वो पी इक्वल टू 7 रहेगा सर। Okay, अच्छा ठीक है. 7 क्यों? बिकॉज Because सर एक एक एक. Okay, girls first. because H and OH both are being utilized. Okay, now let's see this. Let me explain this. ये कैसे बनेगा? इसे क्या बनेगा? They exist as what? CH3CO minus and NH4 plus. और क्या क्या है हमारे पास? H plus and OH minus. ओके. इसके बाद पहली बात ये है कि हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है? होगा। होगा। होगा नहीं, होगा. होगा। होगा. अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, नहीं टूटता है. एसिटिक एसिड बनता है, नहीं टूटता है. यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा हो है। रहा है. दूसरा ये सवाल था कि H प्लस ज्यादा होगा कि OH माइनस ज्यादा होगा? इसी बात पे तुम्हारा डिपेंड करता है ना. तुम्हारा आंसर था कि तुम्हारा आंसर क्या था? Equal to 7. Okay, now let me explain this. All three possibilities are there. pH can be 7, pH can be less than 7, pH can be greater than 7. तीनों possibility है when you have a salt of weak acid and weak base. मैंने आपको शायद एक दो क्लास पहले बताया था कि how do you say an acid is good or bad? उसका किस वैल्यू पे डिपेंड करता है? एच प्लस आयन। नहीं राजा, पीके वैल्यू। पीके वैल्यू. बताओ पीके के हिसाब से एसिड का क्या हाल था? पीके बड़ा हुआ तो एसिड वीक होगा। वीक होगा. ऐसे कतरा रहे हो क्योंकि तुमको याद नहीं आ रहा है. पीके छोटा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा। एसिड स्ट्रांग होगा. एंड लाइकवाइज मेरे पास बेस का भी था. अगर पीके बी बड़ा है तो बेस वीक है और वाइस वर्सा. अब ये क्वेश्चन ये है कि देखो ये एसिटिक एसिड दोनों से बन के क्या बना? एसिटेट और H प्लस से क्या बना? Acetic acid. एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड. अब एसिटिक एसिड क्या है तुम्हारा? Weak acid. उससे क्या होता है? वीक एसिड हुआ तो क्या हुआ? Complete dissociation नहीं होगा. हम लोग ये बोलेंगे कि ज्यादातर अनडिसोशिएटेड रहते हैं, राइट? लेकिन इसका मतलब है कि डिसोशिएट तो हो रहा है ना बेटा. जब मैं कहता हूं कि ज्यादातर अनडिसोशिएटेड है, इसका मतलब क्या है कि डिसोशिएशन नहीं हो रहा है? हो रहा है. हो रहा है लेकिन But less. हाँ. तो इसका मतलब है जो एसिटिक एसिड बनेगा वो दोबारा टूट के एसिटेट और H प्लस बनाएगा. हालांकि इनके नंबर्स कम होंगे, प्लीज रिमेंबर, लेकिन बनेंगे कम. लेकिन बहुत सारा जो है किस फॉर्म में रहेगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड. इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हाल है? ये क्या करेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बार बना तो वो क्या होगा? मोस्टली अनडिसोसिएटेड। हाँ, लेकिन जो डिसोशिएट जो मोस्टली जो नहीं है, जो कम डिसोशिएट हो रहे हैं वो क्या किस फॉर्म में डिसोशिएट होगा? NH4OH माइनस। तो अभी देखिए, अगर यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन,
if the extent of आपने जो acid, weak acid और weak base लिया, if their extent of dissociation is same, then the concentration of H plus and OH minus will be Same. same. The pH will be 7. 7. However, if your weak acid is slightly stronger than the strength of base, यानी आपका एसिड बेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या हो जाएगा? pH will be less than 7. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के साथ क्या हो जाएगा? Increase. H plus will be slightly greater than OH minus, यानी pH क्या होगा? Less than Less than 7. तो अब आप मुझे ये बताओ pH greater than 7 कब होगा? When slightly stronger. हाँ, base is strong. बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बेस इज वीक ओनली, लेकिन दैट वीक बेस कंपेयर टू द वीक एसिड, इफ इट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, राइट? तो H प्लस और OH माइनस में किसका नंबर ज्यादा होगा? OH minus. OH minus. तो pH क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? More than 7. More than 7. So depending on when you take a salt of weak acid and weak base, depending on आपका strength of weak acid क्या है, weak base क्या है, the पहली बात हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा. दूसरी बात, सॉल्यूशन pH का सॉल्यूशन क्या होगा? वो किस बात पे डिपेंड करेगा? It will depend on the relative strength of weak acid and weak base. If their relative strengths are same, what will be the pH of the solution? Equal to 7. If weak acid is slightly stronger than the weak base, pH of the solution will be, Less than 7. than 7. and if the weak base is slightly stronger than weak acid, the pH will be. More than 7. More than 7. So depending on their relative strength, I can have all three possibilities. But in all these three scenarios, the hydrolysis of the salt takes place or does not take place? Hydrolysis of salt takes place. Is this clear? Yes, sir. And just for your information, when I take acetic acid and sodium hydroxide, ammonium hydroxide, both their pKa and pKb are similar. Meaning what? pH is 7. So their pK and pKb are same, which means their relative strengths of acid and their relative strength are same, which means what will be the pH of the solution? Equal to 7. Equal to 7. Is this clear? Yes, sir. Okay. So today we covered lots of ground. People are still coming. So today I didn't